Sayyad Rashid. You are just watching ABI channel. Now student, now we will going to continue like first law of motion. What is law, student? Law is nothing but it is an law which cannot be breakable. If it's break means it will be crime for us. देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स में कई सारे चीज़ें होते हैं, जैसा प्रिंसिपल होता, रूल होता, लॉ होता. लॉ जो होता है वो कभी भी चेंज हो ही नहीं सकता. बिकॉज देखिए न्यूटन ने जो लॉस आपको इंट्रोड्यूस किए थे लाइक 1660s के आसपास, मगर आज की तारीख है यू कैन सी 2020, आज तक भी ये लॉ को कभी भी कोई चैलेंज नहीं करा. एक खुद ये लॉ बन गया, कभी भी चेंज हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि आप जानते हैं कि फिजिक्स की जो थियरी है डे बाई डे हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट रहता है, इम्प्लीमेंटेशंस रहता. सो बट द लॉस इज द part of the physics which cannot be changeable at any time. Okay, so now we will going to learn the first law of motion. For this first law of motion we have usually three names. First name is you can know by the name itself like first law of motion, and second name of this law is Newton's first law, and third name for this law is law of inertia. So what is the law states? First I will going to tell you the definition. After that I will explain. As you can see the definition is written on board itself. I am going to read in front of you. First law of motion. Now if you want to write in examination about first law of motion, you need to maintain like side heading like this. After that mark this line. Then you need to start again. First law of motion can be states as follows. After this you need to write, actually this is a first law, inverted comma. Okay, so every object will remains at rest or in state of uniform motion unless it is compelled to change its state by the action of net force. So what is the meaning of this, student? That means if this marker is at rest, okay, it will remains at rest until and unless there will be some external force acting on it, that to the external net force acting on it, then it rest will change to the motion, or else something is going. If it is in motion like car, bike, bus, whatever you can say, once it is in motion it will not going to stop, but we have some condition. What the condition is? Until and unless compelled by an external force. That means if you are putting brake, then only that vehicle stops. So hope you understood about the first law. So the first law is says anything will be at rest in rest itself, anything in motion it will be in motion itself until and unless compelled by an external force. Okay student, as you are in 9th class, I will going to explain in this Hindi also. ठीक है बच्चों, बोल दो मैं, बेफिक्र रहिए आप. देखिए जो आपका फर्स्ट लॉ होता है, ये फर्स्ट लॉ के बारे में मैं बिल्कुल हिंदी में बोलूँगा. उससे पहले मैं ये बात बोलूँगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपको बिल्कुल समझते हुए याद कर लेना है. फर्स्ट आपको समझ जाइए, फिर आप याद कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए. तो फर्स्ट लॉ सिंपल ये बोलता है कि ठहरे हुई चीज़ ठहरे हुई रहती, चलते हुई चीज़ चलती रहती. या यहाँ तक तो समझ सकते ना आप, ठहरे हुई चीज़ ठहरे हुई रहना, चलती हुई चीज़ चलते हुए रहना. कब तक? एक कंडीशन है उसके लिए, जब तक कि उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता. एग्जाम्पल में हमारे कॉमन बाइक है. बाइक जब आप स्टैंड मार के रोक देते, रेस्ट में रहती, वो रहती. आर यू अग्री विद दिस? तो जैसा ही हम वो बाइक को क्या करेंगे, हमारे आर्म्स का फोर्स से उसको शेक करेंगे, यानी कि हिला के उसका स्टैंड निकाल देंगे, फिर हम बैठेंगे उसके ऊपर. आफ्टर सिटिंग ऑन दी बाइक व्हाट वी विल डू, हम किक मार के स्टार्ट करते. स्टार्ट करने के बाद क्या होता, उसके अंदर मोशन आता, पार्टिकल्स उसके अंदर से मूव होते. हालांकि वो प्लेस पे से नहीं हिलती, मगर उसके अंदर एक हरकत आ रही, अंदर इंजन स्टार्ट हो गया. फिर हम उसको गियर डाल के एक्सेलरेटर दे के चलाएंगे, तो जो रेस्ट था वो मोशन में बदल गया. कैसा बदला? जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो मोशन में बदला. एक्सटर्नल फोर्स में इंक्लूडेड क्या है? एक तो हमारा खुद मस्कुलर फोर्स है, दूसरा जो इंजन से जो पावर सप्लाई हो रहा है वो फोर्स है, और आगे तो आप स्टार्ट कर दिए चलाना गियर से एक्सेलरेटर डाल के, तो ये रेस्ट में हो गया. अब आप जब गाड़ी को चला रहे हैं नाउ, अब वो चलती हुई चीज़ ऐसी रुक जाती, नो, इट विल स्टॉप. अगेन वी नीड टू अप्लाई फोर्स. व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल पुट डाउन दी एक्सेलरेटर. एक्सेलरेटर को कम कर देंगे. कम करने के बाद क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, तो क्या होता हो, रुक जाएगा, यानी मोशन जाके रेस्ट. तो कंक्लूजन हम ये लॉ का हम ये लेंगे, जो रेस्ट वाली चीज़ है रेस्ट में ही रहेगी, और जो मोशन वाली है मोशन में ही रहेगी. कब तक? अनटिल एंड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, कंपेल्ड टू द चेंज इन स्टेट बाय एक्सटर्नल फोर्स.
तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। सो अगर चेक एक सवाल उठाता हूँ मैं आपको, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है बोलो, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है, फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, तो क्या वो हमेशा रेस्ट में रहेंगी, यानी कि रेस्ट से हिलिच नहीं सकती, इट विल नॉट गोइंग टू गोस इन मोशन। सेकंड चीज़, अगर कोई एक मोशन में है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ बढ़ रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर आप 20 मीटर्स पर सेकंड ले लीजिए, ये वेलोसिटी से कोई एक चीज़ बढ़ते जा रही है, जैसा कि अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, बढ़ते 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 जा रही है उसकी स्पीड से, तो क्या वो रुकती ही नहीं कभी, अगर कि उसको फोर्स अप्लाई नहीं हुआ तो क्या वो हमेशा के लिए नहीं रुकेगी? थिंक, तो बोलिए अब आपने को, जो थेरेवी चीज़ है, थेरेवी। सो हियर द आंसर इज, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है कभी भी जब तक के उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ चेंज नहीं होता। इट इज़ ट्रू, अगर कि वो चलते रहे तो चलते ही रहेगी, थेरेवी रहे तो थेरेवी रहती। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो अर्थ है, अर्थ का रोटेशन क्या रहता, रेवोल्यूशन सन के अराउंड चलते ही रहता कांस्टेंट फोर्स के साथ, वो कभी भी नहीं रुकता, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, जैसा है वैसे ही चलते रहता है। दिस इज द थिंग। नाउ वी विल गोइंग टू कंटिन्यू दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ वन एक्टिविटी। सो एक्टिविटी 1 in our reader, it is available. So for this activity better I will going to show you practically right now itself. Okay, this is activity number 1 as per our reader. I will going to show you this experiment like practically. For that we need small few things with us, like I have 1 rupee coin with me, I have some thick paper as you can see here, apart from this I have glass. Okay, so I am doing this experiment with the help of these 3 apparatus. I am keeping this glass on the table as you can see here. Okay, now after keeping the glass here, I am keeping one thick paper. Okay, this is not exactly thin paper, this is a thick paper. Okay, now I am placing 1 rupee coin on this. Okay, as you can see I am pushing this paper here. Okay, hope you observe what happened to the coin. So we will continue this discussion in our theory class. Okay, hope you enjoy the practical visualization of the thing which we have done related to the activity number 1. उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें आपने देखा था प्रैक्टिकली उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करे होंगे। तो एक्टिविटी 1 हमारी ख़त्म हो गई, बहुत सिंपल था। क्या करे थे हम, वी हैव टेकन 3 थिंग्स ऑलरेडी लाइक पेपर, कॉइन एंड ग्लास। तो हमने पेपर को जो है ग्लास के ऊपर रखे, उसके बीच और सेंट्रल में कॉइन रख के हमने पुश किया था, तो कॉइन ग्लास में गिर गया। नाउ व्हाट हैपेंड टू द कॉइन, यानी कॉइन ग्लास में क्यों गिरा, कैन यू टेल द रीज़न? So to find this reason you have to listen this lesson forward. You will get the answer few next topics. Okay, now student we will continuing with our activity number 2. The activity number 2 heading, as you can see, like observing the motion of coin hit by striker. Okay, I am writing here, you can see observe, OBSERVING, observing the motion of the coin as you can see here. Okay, hit by a striker, STRIKER. दैट मीन्स इसका जो एक्टिविटी है ये सिंपल है स्टूडेंट, यू कैन डू एट योर होम इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड अगर आपके पास है, कॉइन्स और स्ट्राइकर आपके पास है, ये 3 थिंग्स अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं। सम स्टूडेंट्स माइट से खाली दे आर कीपिंग कैरम बोर्ड विद दैट, सर वी डोंट हैव कॉइन एंड स्ट्राइकर, व्हाट टू डू? मेक श्योर स्टूडेंट कैरम विल नॉट कंप्लीट विदाउट स्ट्राइकर and coins. Okay, let it be, this is not our topic. So listen, so what you have to do, make a strike of carom coin on the carom board, give a sharp hit at the bottom of the strike with striker, you can find the bottom coin will be removed. जैसा ही आप जो स्ट्राइकर रहता उसको रखिए, जो भी लाइन रहता कैरम बोर्ड की उसके ऊपर रख के आप ज़ोर से उसको हिट कीजिए, तो आप देखेंगे कि जो उसकी जो आगे की जो बॉटम की कॉइन है वो रिमूव हो जाएगी और जो आपका स्ट्राइकर है वो वर्टिकली, अगर आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मारते हो तो वर्टिकल डायरेक्शन में वो खड़ा हो जाएगा। सो जैसा ही उन्हें वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ा हो गया था, फिर वापस उन्हें सही तरीके से स्लाइड हो जाता है। व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग फ्रॉम दी अबव एक्टिविटी, एक्टिविटी से आपके ऑब्जर्वेशन में क्या है, आपको क्या समझने आया? वाई डज द कॉइन फॉल इनसाइड द ग्लास टिम्बर, वाई डज द स्ट्राइकर ऑफ कैरम फॉल डाउन वर्टिकली? जैसा कि आप देखें कि इसके अंदर क्या होता है, यूजुअली जो कैरम का कॉइन होता है वो डायरेक्टली जो उसका होल रहेगा, सुराख, गिर जाएगा। एंड वन मोर थिंग के जो आपका
स्ट्राइकर जो रहेगा पहले थोड़ा सा वर्टिकल डायरेक्शन लेगा, अगेन फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल विच वी फेस इन आवर डेली लाइफ। इसको समझने के लिए हमको कुछ और एग्जाम्पल्स भी पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द बस विच इज एट रेस्ट बिगेन टू मूव सडनली, द पर्सन स्टैंडिंग इन द बस फॉल्स बैकवर्ड because of the static inertia of the body. The object at rest will try to remain rest until we apply an external force. There will be no change in the position of the object. This is known as static inertia. So now we will going to introduce one word with us. Okay, the word is here is nothing but inertia. Okay, what is inertia and how many types of inertia we have with us, we have to discuss. So inertia is nothing but, first I have to tell what is inertia. Okay, inertia I will going to tell you later. As of now we will going to learn like static inertia. Okay, what is static inertia? Just now I read one thing. जैसा कि मैं अभी कुछ एक चीज़ पढ़ा था, वो क्या था, अब आप बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, बस स्टार्टिंग में क्या है, रस्ट में रहती, जैसा ही बस यानी कि स्टार्ट हो जाएगी, आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाओगे बस स्टार्ट होने पे। क्यों जाओगे? क्योंकि आपके अंदर स्टैटिक इनर्शिया आपकी बॉडी के अंदर था, तो उसी की वजह से जो आपका जो पोजीशन है चेंज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ था जैसे ही बस स्टार्ट हुई थी। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक इनर्शिया। जैसा कि कोई खामोश ठहरे हुआ है, जैसा कि मैं खामोश ठहरे हुआ हूँ, पीछे से आके कोई मेरे को धक्का दे दिया तो मैं क्या हो जाऊँगा? गिर जाऊँगा। तो जब मैं खामोश ठहरे हुआ था मेरे अंदर एक स्टैटिक इनर्शिया था, लेकिन किसी ने मेरे को मारा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने के बाद आगे चला गया मैं, कुछ इस तरीके से रहता है। सिमिलरली वैसे ही चलिए, बस तो स्टार्ट हो गई, आप थोड़ा सा पीछे की तरफ बैकवर्ड हो गए थे। नाउ बस स्टार्ट रनिंग। ओके, आफ्टर द रनिंग ऑफ बस, इफ द बस स्टॉप सडनली यू विल फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू डायनामिक इनर्शिया। जैसा ही बस चल रही थी, बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते ही आप थोड़ा सा ऐसा सामने की तरफ होंगे। क्यों होंगे सामने की तरफ? बिकॉज ऑफ डायनामिक इनर्शिया। अब ये डायनामिक इनर्शिया क्या है? सेम है जैसा कि आपकी जो बॉडी है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में आ चुकी थी बॉडी आपकी, लेकिन जैसा ही रेस्ट पे आया था बस, तो आपके पास डायनामिक इनर्शिया था जिसकी वजह से आप हो गया। सो द बॉडी विच इज इन मोशन ऑलवेज ट्राई टू मूव इन अ सेम डायरेक्शन अंटिल सम नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डायनामिक इनर्शिया। डायनामिक इनर्शिया किसको बोलते हैं? कौन सी भी चीज़ यानी कि बॉडी, कौन सी भी बॉडी है जब वो मूविंग में रहती है, उन्हें कोशिश करती कि ऑलवेज जो है उसी सेम डायरेक्शन में वो मूव होती रहे जब तक कि उसको एक नेट फोर्स अप्लाई नहीं होता। इस प्रॉपर्टी को आप डायनामिक इनर्शिया बोलेंगे। ओके, नाउ आगे पढ़ेंगे हम थोड़ा। विथ आवर डे टू डे एक्सपीरियंस वी ऑल नो वी मस्ट exert some force on an object to keep it moving. As far as the object is concerned, the force applied by us is just one of the several forces acting on it. The other forces might be friction, air resistance or gravity. Thus, it is clear that it is the net force which determine the change in the motion of an object. So, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में कई सारे चीज़ों का एक्सपीरियंस करे होंगे और कई सारे यानी कि फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट हुए होंगे। जैसा कि आपको यानी कि फोर्स अप्लाई करने पे चीज़ों का स्टेट चेंज होता, लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ ख्याल रखना है कि कोई चीज़ अगर रखे हुई है, जैसा कि डस्टर है यहाँ पे रखे हुआ है, ठीक है, अब इन्हें रेस्ट में है, अब मैं इसको मोशन में लेके आना चाहूँगा, तो मैं मेरा फोर्स क्या करूँगा? अप्लाई करके इधर से इधर तक लेके आ गया मोशन में इसको, या फिर मैं इसको ऐसा धक्का दे के नीचे गिरा दूंगा। ठीक है, ये दो चीज़ होते। लेकिन जब मेरा फोर्स अप्लाई हुआ तो खाली इसके पास एक ही फोर्स अप्लाई था, एक ही फोर्स था नहीं, इसके पास कई सारे फोर्सेस थे। अगर इन्हें ये स्टेज में है तो यूजुअली इसके पास 3 फोर्सेस तो रहते हैं, जैसा कि आप 8th क्लास में ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर फोर्स में पढ़ चुके हैं। तो 3 फोर्सेस क्या रहेंगे उसके? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है उसको, दूसरा एक नॉर्मल फोर्स रहता है और एक तीसरा रहता है उसका फ्रिक्शनल फोर्स। उसके साथ साथ एयर रेसिस्टेंस भी इसके अंदर रहता है। अगर मैं फुल तेज अगर एयर यहाँ पे मारता हूँ तो एयर रेसिस्टेंस, कई सारे फोर्स होते। तो जब मैं इसका स्टेट चेंज कर रहा हूँ तो मेरे को एक एक्सटर्नल नेट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल नेट फोर्स कैसा रहता? एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताता हूँ, होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। अब जो डस्टर था हमारा, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स सपोज 10 न्यूटन का है, ओके, और नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर रह गया सपोज 5 न्यूटन का रह गया, फ्रिक्शनल फोर्स एक रहता है 2 न्यूटन का रह गया उसके ऊपर, ओके। लाइक एयर रेसिस्टेंस समझ लीजिए आप 1 न्यूटन के आसपास रहा। तो अब मेरे को इसको हटाने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा?
मिनिमम इसको हटाने के लिए मूवमेंट में इससे थोड़ा तो भी बढ़ के फोर्स अप्लाई करना, जैसा 10 + 5 + 2 + 1 एज यू कैन सी 15, 16, 17, 18, तो ये टोटल हो रहा है यहाँ पे 18 न्यूटन्स। ओके, तो आई हैव टू अप्लाई मोर देन 18 न्यूटन फोर्स, तो ये क्या हो जाता है, इसको हम बोलेंगे नेट फोर्स। जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे नेट फोर्स, दिस इज द फोर्स। ओके, सो अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते जाएंगे। अभी ये चीज़ आपको समझनी है कि कौन सी भी चीज़ अगर वो रेस्ट में है तो उसको हम हटाने के लिए एक जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम नेट फोर्स कहते हैं। और नेट फोर्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। लेट अस कंसिडर अ फुटबॉल प्लेस एट द रेस्ट ऑन द ग्राउंड। द लॉ ऑफ इनर्शिया टेल्स अस दैट फुटबॉल विल रिमेन्स इन द सेम स्टेट अनलेस समथिंग मूव इट्स। तो जैसा कि अगर एक बॉल है, फुटबॉल ग्राउंड के अंदर रेस्ट के स्टेट में रखा हुआ है। ठीक है, एक फुटबॉल है आपके पास। ओके, ये फुटबॉल क्या है, ग्राउंड में रेस्ट में रखा हुआ है, तो इन्हें रेस्ट से रेस्ट में रहेगा जब तक कि इसके ऊपर हम मूव नहीं करते इसको। तो इफ़ यू किक द बॉल इट विल फ्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ किक विथ सर्टेन स्पीड until a force slow it down or stop it. If the ball goes high, the force of gravitation slow it down. If the ball rolls on the ground, the force of friction makes the ball slow down and stop. तो अब यहाँ पे क्या होता, जब आपने फुटबॉल को किक मार दिया था, जो किक का डायरेक्शन था आपके उसी डायरेक्शन में बॉल को जाना है। जैसा कि ये डायरेक्शन बॉल डस्टर है, अब डस्टर यहाँ पे रखे हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा अगर गिराना चाहूँगा तो ऐसा गिरेगा वो, अगर मैं इसको इस तरीके से करके गिराना चाहूँगा तो इस तरीके से गिरेगा, या फिर ऐसे ही रखे हुआ था इस तरीके से करके, यानी कि जो मेरा किक का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन पे बॉल मूव होगा। लेकिन जैसा ही वो बॉल हवा में जाएगा, एक हाइट तक जाना चाहता हो, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसको रोक देता, स्लो डाउन करेगा। जो स्लो डाउन करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा ही वो स्लो डाउन होगा ग्राउंड पे गिर जाएगा। ग्राउंड पे गिरने के बाद क्या होगा, थोड़ी दूर चलता ही रहेगा कि और एक फोर्स उसके ऊपर इमीडिएटली अप्लाई होना शुरू होगा। वो फोर्स का नाम क्या रहेगा अपना, फ्रिक्शन फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स मिलके क्या करे थे, उसको रोक दिए, स्टॉप कर दिए। नेक्स्ट आगे, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, द ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट रिमेन्स एज द रेस्ट, और इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज कंटिन्यूअस टू मूव विद द सेम वेलोसिटी, थस वी कैन रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एज फॉलोज। तो जैसा कि देखिए, अगरचे के कोई उसके ऊपर नेट फोर्स एक्टिंग हुआ और वो नेट फोर्स जीरो रहा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, रिमेन्स, अगर रेस्ट वाला है तो रेस्ट में ही रह जाएगा, अगर मूविंग वाला है तो मूविंग में रह जाएगा, अनटिल एंड अनलेस उसको कोई सर्टेन वेलोसिटी से मूव ना करे। तो हम जो उसका नेट फोर्स अगर ज़ीरो है तो हम उसको कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ऑफ एन ई टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम ज़ीरो। जब उसका ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो जीरो पे आ जाता है। थस व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, वी से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। न्यूटन फर्स्ट लॉ नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अगर चेके इसके अंदर कुछ नेट फोर्स एक्टिंग नहीं होगा तो वो जो कंप्लीट बॉडी है इक्विलिब्रियम में रहेगी। इक्विलिब्रियम क्या है सर, इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट एक ऐसा स्टेट बॉडी का, ना वो रेस्ट में रहती ना मोशन में रहती, जैसी थी वैसे ही रहती। यानी कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी ना। अभी मैं आपको इनर्शिया के बारे में बोलता हूँ, हो रहा था। इनर्शिया में तो दो टाइप के इनर्शिया है, जैसा कि आप देखें, स्टैटिक इनर्शिया एंड डायनामिक इनर्शिया। स्टैटिक इनर्शिया इज अ फोर्स विच इज रिलेटेड टू समवट the thing at rest, whereas the dynamic inertia is related to the state related to the motion. Now what is inertia, student? Could you tell what is inertia? So inertia is nothing but, as we learn the Newton first law of motion, like every object will remains at rest or in a state of uniform motion unless it is compelled to change in its state by the acting of external force. So this is acting of external force is known as inertia. Okay, if someone asks you what is inertia, inertia is nothing but it is a force which can change the states of motion, state of object either from rest to motion or motion to rest. समझ में आया? Inertia is a force which changes the state of body either from rest to motion or motion to rest. यानी inertia एक ऐसा force है जो कौन सी भी चीज़ के स्टेट को चेंज करेगा। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में लाएगा, अगर मोशन में है तो रेस्ट में लाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, inertia and static inertia, dynamic inertia. So student, make sure I will going to give few definition. First you need to copy that first law of motion from like here board itself.
I am placing few definition like what is inertia, what is static inertia, and what is dynamic inertia. These three definition I will placing on your screen. You need to copy these three definition and you need to learn. So totally in this session you will get 4 definition. One is you need to copy from board like first law of motion. I am just roughing the thing which I wrote while explaining. Okay, जब मैं explain कर रहा था कुछ चीज़ें मैंने लिखे थे वो रफ कर दिया है मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं. फर्स्ट लॉ आप लिख लीजिए. उसके बाद आपको 2 डेफिनेशंस आपके स्क्रीन पे दिखेंगे. एक रहेगा इनर्शिया का, ओके, और इनर्शिया के बाद आपको रहेगा एक स्टैटिक इनर्शिया और एक डायनामिक इनर्शिया. ये 3 डेफिनेशंस आपको स्क्रीन पे से देख के लिख लेना है. So this is Syed Rashid with you. This is our 9th class chapter 3 law of motion. Have a great time. Thank you.